Good morning students. So now we will study the first chapter, that is the language of chemistry. Language of chemistry. Now here we have two words, language and chemistry. Language means the words which we use to communicate with the people. The group of words which we use to communicate with the person. If we want to express our feelings, if we want to express something whatever in our mind, we use some words to express it to others. So the words, the group of words which we use to express our feeling, to express about something, to explain about something, that is nothing but the language. Now this language may be different. This may be different for the different people. The language which we use, it is made up of group of words. The another term is chemistry. Chemistry means it is the science which deals with the chemicals. Chemistry, it is the branch of science which deals with the chemicals. So here language of chemistry means the words, the sentences which we use, the language which we use to explain about the chemicals, to explain something more about the chemicals. Language which we use to explain something about the chemicals. Here why we are saying chemicals? Because the language we use for different subject is different. Chemistry cannot be explained in the words in which the zoology or botany or the physics or the maths is explained. So each branch of science has its own words, its own terminology to deal with the subject. So here the language which we use to explain about the chemicals, chemical equations, that is the language of chemistry. This language of chemistry, it is first time the language of chemistry, the foundation was led by J.J. Berzelius. J.J. Berzelius ने जो है ये लैंग्वेज हमें बताई है कि जिस लैंग्वेज में हम केमिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, गैसेस है, उनकी आपस में क्या रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जिस लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट लैंग्वेज फाउंडेशन वाज गिवन बाय J.J. Berzelius. He has laid the foundation of language of chemistry. Now in this language of chemistry, we will study about three parts. Number one is the symbol, second one is the formula, and the third is the chemical equation. Symbol, formula and chemical equation. Symbol मीन्स किसी भी एलिमेंट का यदि हमें नाम लिखना है, उसको बोलना है, तो पूरा नाम लिखने के बजाय हम एक सिंबल यूज़ करते हैं. तो हम किस एलिमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ सिंबल. आफ्टर दैट विल स्टडी अबाउट द फॉर्मूला एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल इक्वेशन. अब जब भी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हम जब एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं या बोलते हैं या किसी को बताते हैं, तो उसके लिए अभी मैंने बताया हम सिंबल का यूज़ करते हैं. वी यूज़ सिंबल. अब ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स जो है हम यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट होता है कि आइदर वी विल राइट द फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ द स्पेलिंग ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट. जैसे मैंने बोला यहाँ पर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ HYDROGEN, H. So the symbol which we use for the hydrogen will be H. If we see boron, then the spelling is BORON, boron. Now here the spelling starts with B. So we will write the symbol B. If we study the carbon, then the spelling starts with CARBON, carbon. We will write here the first letter, that is C. CARBON. C we will use as a symbol of carbon. Then nitrogen, NITROGEN. Then what symbol we will use? We will use the first letter, that is the N, nitrogen. Here same with the oxygen, O. Fluorine, F. Phosphorus, P. So first part is that in which we use the first letter of the spelling.
first letter of the spelling we use as a symbol to indicate that particular element. So hydrogen H, boron B, carbon C, nitrogen N, oxygen O, fluorine F, phosphorus P. Second part, we can explain, we can write the symbol in the way like what we write the spelling, first two letters or any two letters from the spelling. Whatever spelling we write for that particular element, from that spelling first letter and any of the letter from between we can use to write as a symbol of the element. Like here example, helium. Helium spelling is H-E-L-I-U-M. We will write first letter H and second letter E. So H-E. H-E will be written as a symbol for helium. Second, neon, we will write N-E-O-N spelling and the symbol what we use will be N-E. Then third is nickel, N-I-C-K-E-L, spelling is nickel, N-I-C-K-E-L. We will use N and I to indicate the symbol. Then like magnesium, spelling is little bigger, but what we use in that, not now first and second letter, we will use first letter M and then third letter G, Mg as the symbol of magnesium. Then for the aluminium we will use Al as the symbol, for zinc we will use Zn. ऐसे कई सारे एलिमेंट्स है जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स में उसके सिंबल को नोट करने के लिए हम उसका स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें हम स्पेलिंग का फर्स्ट और सेकंड लेटर या फर्स्ट लेटर और इन बिटवीन स्पेलिंग में से कोई भी एक लेटर लेकर उसको इंडिकेट किया जाता है, दैट इज H-E-L-I-U-M हीलियम H-E, नियॉन N-E, निकल N-I, मैग्नीशियम Mg, aluminium Al and zinc Zn. Z-I-N-C zinc, we will use Zn as a symbol. So this is the first part in which we use the first letter of the spelling. Here second part in which we use the two letters, first letter and any of the letter from the spelling. Now some of the elements we will not write about the, like the spelling first letter or the first two letters or any two letters, no. For some of the symbols, this scientist has given us in Latin language. In Latin, their symbols are indicated in Latin language. Their Latin names are different. General names what we use to explain, किसी को बताने के लिए जो एक सामान्य भाषा में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट, और उसको एक साइंटिफिक लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए, यदि उसको बताने के लिए हमें साइंटिफिक नाम यूज़ करना है, उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करना है, दैट इज़ द लैटिन लैंग्वेज. तो लैटिन लैंग्वेज में एक प्रकार से साइंटिफिक लैंग्वेज है. तो इस लैटिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम हम लैटिन में यूज़, उनका जो लैटिन में उनका स्पेलिंग है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उसके आधार पर हम उसको जो है लिखते हैं, सिंबल को लिखते हैं. जैसे सोडियम, ये जो सोडियम है इसका जो लैटिन नाम है वो लैटिन नाम है नाइट्रियम. अब जैसे यहाँ हमने इधर यहाँ पर और सेकंड्स में किया है कि हमने फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर लिया, तो हम यहाँ पर भी सोडियम का SO नहीं लिखेंगे, वी विल नॉट राइट SO, बट सोडियम हैज़ इट्स लैटिन नेम नाइट्रियम. सो दिस लैटिन नेम का जो लेटर है वो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ Na, सोडियम. या पोटेशियम, पोटेशियम का जो लैटिन नाम है द पोटेशियम, इट इज़ कैलियम, K-A-L-I-U-M, कैलियम. So for writing potassium the symbol used will be K, कैलियम K, because its Latin name is कैलियम. Then silver, चांदी जिसको हम बोलते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं गहने बनाने में, ये जो सिल्वर है इसका लैटिन नाम जो है दैट इज़ अर्जेंटिनम. सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटिनम. तो सिल्वर के सिंबल को जब हम लिखेंगे तो हम उसका जो लैटिन नाम है अर्जेंटिनम, उसमें से हम A और G लेटर्स को यूज़ करेंगे, दैट इज़ AG, सिल्वर. तो सिल्वर इज़ द कॉमन नेम विच वी यूज़. साइंटिफिक नेम, लैटिन नेम इज़ अर्जेंटिनम एंड वी विल राइट सिंबल AG. सेम इन गोल्ड, जिसको हम सोना बोलते हैं, तो दैट इज़ ऑरियम, लैटिन नेम इज़ ऑरियम एंड वी विल यूज़ AU एज ए सिंबल टू इंडिकेट गोल्ड. सेम मर्क्यूरी, पारा जिसको हम बोलते हैं, जो कि थर्मामीटर के अंदर होता है. ये जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी इट्स लैटिन नेम इज हाइड्रेजिरम, हाइड्रेजिरम. और इसको जब हम इंडिकेट करते हैं, इसका जो सिंबल हम लिखते हैं वो सिंबल हम लिखते हैं Hg. तो मर्क्यूरी हाइड्रेजिरम इज द लैटिन नेम एंड द सिंबल वी यूज इज Hg.
तो अभी हमने देखा कि जब हमें सिंबल लिखना है, जब हमें सिंबल किसी एलिमेंट का बताना है, तो हम 3 अलग अलग प्रकार से अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स का लिखते हैं। फर्स्ट इसमें हमने देखा कि उसकी जो स्पेलिंग होती है, उस स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर हम यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोजन H, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, फॉस्फोरस P एंड नाइट्रोजन N। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि उसके हम फर्स्ट 2 लेटर्स को यूज करते हैं, या एनी 2 लेटर्स ऑफ द स्पेलिंग, फर्स्ट लेटर एंड अनदर वन एनी 1 लेटर। सो हीलियम He, नियॉन Ne, निकल Ni, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके हम जो सिंबल्स यूज़ करते हैं, सिंबल जो हम यूज़ करते हैं वो उसके लैटिन नेम के आधार पर, जो साइंटिफिक नाम है उस साइंटिफिक नाम के आधार पर हम उसका सिंबल लिखते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का जो साइंटिफिक नाम है, लैटिन नेम है, वो है नेट्रियम, तो विल राइज Na। पोटेशियम, उसका लैटिन नाम है कैलियम, विल राइट K। सिल्वर, अर्जेंटिनम इज द लैटिन नेम एंड वी विल राइट Ag। गोल्ड, scientific name, Latin name is aurum and the symbol is Au. Mercury, its Latin name is hydrogram and it is Hg, symbol is Hg. So students, I have explained you about the writing symbols of the different elements, about the symbols of the different elements. So students, in first part we have studied about the element symbol, how to write the symbol of an element. In that we have studied in different ways how we write the symbol. We can use the scientific names also to write the symbol of an element. Now the second part of the chapter is formula. Formula, how to write the formula. जैसे अभी हमने देखा था कि सिंबल लिखा है, अब यदि हमें रिप्रेजेंट करना है, कोई 2 एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं और उससे कोई तीसरी चीज़ बन रही है, तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? कार्बन को C से कर दिया, बोरॉन को B से हम इंडिकेट करेंगे, नाइट्रोजन को N से इंडिकेट करेंगे, हाइड्रोजन को H से करेंगे। पर सपोज 2 एक जैसे एलिमेंट के जब एटम्स आपस में मिलेंगे या 2 डिफरेंट जब आपस में मिलेंगे, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 or more elements when they combine with each other, then we represent them with the formula. हम उसको कैसे करते हैं? फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो here one word is there, one term is molecule. मॉलिक्यूल मतलब अब ये जो मॉलिक्यूल होता है ये 2 सेम एलिमेंट के मिलने से भी बन सकता है या 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर भी मॉलिक्यूल बन सकता है। जैसे यदि मैंने बोला कि हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट दूसरा भी इसमें मिक्स होगा तो इससे H2 बनेगा, या O प्लस O O2 बनेगा, है ना। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि 2 एक जैसे एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं और मॉलिक्यूल बन गया। पर कई बार हमने देखा है, जब हम आगे देखेंगे केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस देखेंगे, तो सिर्फ एक जैसे एलिमेंट से मिलकर मॉलिक्यूल नहीं बनता है, 2 डिफरेंट 2 या 3 या 4 एलिमेंट के मिलकर भी मॉलिक्यूल बनता है। तो उस समय जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, दैट इज द फॉर्मूला, वो उसको बोलते हैं हम फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल, अब यदि एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बना है तो H2 लिख दिया। पर अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, जैसे हमने सुना है वाटर, है ना, हमें पता है वाटर, वो वाटर जो हम मुंह से बोलते हैं वाटर, पर उसको जब हम केमिकली इक्वेशन लिखते हैं उसकी, या उसको जब साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम वाटर को लिखते हैं H2O। अब यहाँ पर H2O मतलब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, मतलब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल बना है, ये वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? वाटर बनाया है। तो दिस इज द मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ द एलिमेंट, दे कंबाइन विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। सो दिस वाटर इज द एग्जाम्पल, इट इज द मॉलिक्यूल। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ये मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो लिखा है H2O, दैट इज द फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला। या यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये यदि दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है HCl। तो ये जो HCl बना, ये जो HCl बना है, ये बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से, दिस द मॉलिक्यूल।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मॉलिक्यूल एंड व्हाट वी राइट टू रिप्रेजेंट इट, दैट इज द फॉर्मूला, उसको बोलते हैं हम फॉर्मूला। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं और ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब वो सिर्फ एक एटम से मिलकर बने हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के सिर्फ एक एटम से मिलकर यदि बना है तो वो होगा मोनो एटॉमिक। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है HENEARKR, दैट इज द हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी है नोबल गैसेस। These are the inert gases. These are the noble gases. They are inactive in nature. तो ये जो नोबल गैसेस है, ये सारी नोबल गैसेस जो है वो कैसी होती है, मोनो एटॉमिक, मतलब वो सिंगल एक ही एटम से मिलकर बनी हुई है, एक ही प्रकार के एलिमेंट के एटम से मिलकर बनी है, दैट इज द मोनो एटॉमिक। मोनो मीन्स वन, एटॉमिक मीन्स एटम, जो एक ही एटम से मिलकर बना है, दैट इज द मोनो एटॉमिक। एग्जाम्पल्स कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन। फिर डाई एटॉमिक, डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू, तो जो दो एटम से, मतलब एक ही प्रकार के दो एटम से मिलकर बना है, दैट इज द डाई एटॉमिक। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, दीज आर द डाई एटॉमिक, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स। एंड ट्राई एटॉमिक, दैट इज मेड अप ऑफ 3, सेम ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन के जब 3 एटम आपस में मिलते हैं तो बनता है O3, जिसे हम बोलते हैं ओजोन। ये ओजोन नाम जो है आपके लिए कोई नया नहीं है, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो 4 लेयर होती है, उस लेयर में हमको सन की अल्ट्रावायलेट रेज से जो लेयर बचाती है, दैट इज द ओजोन लेयर। ये ओजोन की लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ है, जिसके कारण द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन डज नॉट एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड वी आर सेफ बिकॉज ऑफ दिस ओजोन। सो दिस इज द ओजोन विच इज अ ट्राई एटॉमिक। 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनी है ओजोन, दैट इज O3, इसलिए हम उसको लिखते हैं O3, मतलब ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 एटम है, सो इट इज ट्राई एटॉमिक। सो वी हैव 3 टर्म्स, monoatomic, diatomic and triatomic. Monoatomic, which is made up of 1 atom. All the inert gases, all the noble gases जिसको हम बोलते हैं, inert gas जिसको बोलते हैं, they are monoatomic. Examples, helium, neon, argon, krypton and xenon. Diatomic मतलब जो 2 एटम से मिलकर बना है, that is nitrogen, oxygen, fluorine, bromine, chlorine, iodine. और ट्राईएटॉमिक मतलब जो 3 एटम से मिलकर बना है, दैट इज ओजोन, O3, जिसका हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको, O3 से। सो दिस इज अबाउट द मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक एंड ट्राईएटॉमिक। अब इसके बाद में एक टर्म है वैलेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 एक जैसे एटम आपस में मिलेंगे या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जब मिलते हैं आपस में, तो क्या ऐसा है कि ये आपस में ऐसे ही मिल जाते हैं, इधर से थोड़ा सा हाइड्रोजन ले लिया, इधर से थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लिया और पानी बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि पानी बना है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ फिक्स क्वांटिटी होगा, उसका कुछ रेशो होगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लिया, इधर से थोड़ा हाइड्रोजन ले लिया, या थोड़ा सा नाइट्रोजन ले लिया, थोड़ा सा हाइड्रोजन ले लिया, अमोनिया बना दिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पर जो है, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, जब 2 डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वहाँ पर जो एलिमेंट है वो कुछ एक फिक्स रेशो में आपस में मिलते हैं। देयर इज ए फिक्स रेशो, और ये फिक्स रेशो में ही एक दूसरे से आपस में मिलकर केमिकली उनकी रिएक्शन होती है और हमें जो है मॉलिक्यूल मिलता है। तो यदि पानी बनता है, यदि H2O बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई आपस में रेशो नहीं है। नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब मिलते हैं तो दे हैव देयर कैपेसिटी। जैसे हम हैं, हमारे काम करने की कुछ कैपेसिटी है। हमको किसी ने कहा कि तुम 10 घंटे लगातार काम करो, हम नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी है, हम उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और हर पर्सन की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। यदि मैं 10 घंटे काम कर सकती हूँ, कोई 15 घंटे काम कर सकता है, कोई 4 घंटे काम कर सकता है, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। तो काम करने की जैसे हमारी क्षमता अलग अलग होती है, वैसे ही रिएक्शंस जब होती है तो कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट्स की अलग अलग होती है।
तो जिस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और एक नया कुछ एलिमेंट बनता है, केमिकल रिएक्शन होती है, दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी इट इज नोन एज वैलेंसी। चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे बोरॉन हो, चाहे सिलिकॉन हो, कुछ भी हो, when they meet with another atom they have some fixed ratio, उनकी एक combining capacity है, तो the combining capacity of that element it is valency, उसको हम बोलते हैं valency। और ये कंबाइनिंग कैपेसिटी आप जब आगे की क्लासेस में जाएंगे, जब केमिस्ट्री और डिटेल में पढ़ेंगे, जब वैलेंसी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये वैलेंसी मतलब जो कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब जो है कि वह एक पर्टिकुलर एलिमेंट अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को देता है या कितना उससे लेता है। ये डिपेंड करता है कि उसके आखिरी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। उसके आखिरी के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन या तो वो किसी को देगा या वो किसी से लेगा। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब होता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कितने इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे किसी एलिमेंट को दे सकता है, उसके साथ शेयर कर सकता है अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। अब यदि मैं ऑर्बिट वर्ड यूज़ करूँगी तो आपको नया है वो वर्ड, पर जस्ट यू लिसन इट कि जब कैपेसिटी इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में हम बात करते हैं, मतलब यही होता है कि उनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन वो किसी के साथ शेयर करते हैं। वो जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे दैट इज वैलेंसी, ये उनकी हो गई वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज इट्स वैलेंसी। सो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी मीन्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, उसको बोलते हैं हम वैलेंसी। और ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो हर एलिमेंट की अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्किंग कैपेसिटी हर किसी की अलग अलग होती है, वैसे कंबाइनिंग कैपेसिटी वो कितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या कितना किसी से ले सकता है, ये उसका अलग अलग होता है। सो दैट इज द वैलेंसी। सो व्हाट इज वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। अब इसमें जो है वैलेंसी से आगे यदि हम जाए तो हमारे पास में फिर से 3 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। अब मोनोवैलेंट, फिर वैलेंट, वैलेंट वर्ड इज रिलेटेड विद वैलेंसी। और अभी मैंने आपको बताया कि वैलेंसी मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। तो मोनोवैलेंट मतलब विच हैज 1 वैलेंसी, दैट इज द मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, they can share 1 electron. Divalent means 2 and trivalent means 3 और tetravalent मतलब 4। तो ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, that is the valency, and that is why we have here 4 categories: monovalent, divalent, trivalent and tetravalent. टेट्रा मतलब 4। तो ये जो कार्बन, सिलिकॉन, ये जो है सिलिकॉन, कार्बन, ये जो है दे आर द टेट्रावेलेंट। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ट्राइवेलेंट। डाइवेलेंट में ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मोनोवेलेंट में हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। सो मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट, दिस इज द वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। फिर जो हम फॉर्मूला लिखते हैं मॉलिक्यूल का, इट मे बी द मॉलिक्यूल मे बी मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ द एलिमेंट, और मे बी डिफरेंट, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हियर वाटर जब बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। और अगेन 3 टर्म्स, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब जो सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बना है, दैट इज द इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस आर मोनोएटॉमिक बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ 1 एटम, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। दीज आर द नोबल गैसेस, दीज आर द इनर्ट गैसेस। डायएटॉमिक मतलब 2 एटम से मिलकर बने हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। और ट्राइएटॉमिक मतलब जो कि 3 एक ही प्रकार के 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है, दैट इज द O3, जिसको हम बोलते हैं ओजोन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला, writing the formula of the molecule. So now just you look at the board carefully and just try to find out the different categories in that atomic, monoatomic, diatomic, triatomic and related with the valency, monovalent, divalent,
trivalent and tetravalent. Children, please read the chapter carefully so that you can understand in detail about all these terms. So students, previous lecture we have studied about the formula, how to write the formula and what is the valency. In that valency we have studied that valency is the combining capacity of an element. मतलब वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर जब कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है तो वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ में शेयर करेगा, दैट इज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो अब ये जो हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसकी वैलेंसी 2 हुई. यदि कोई 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसकी वैलेंसी 3 हुई. यदि वो से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसकी वैलेंसी 1 हुई. मतलब ये 1, 2, 3 ये जो हम बोलते हैं कि इसकी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी, जैसे ए एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1 है, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. यदि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की 2 वैलेंसी है, इसका मतलब इट शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो दैट इज द वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. अब जब हम फॉर्मूला लिखते हैं कंपाउंड्स मतलब जब 2 डिफरेंट एटम आपस में मिलते हैं तो जो हम जैसे बोलते हैं मॉलिक्यूल बनता है या कंपाउंड जो बनता है 2 एटम के मिलने से, डिफरेंट एटम के मिलने से, दैट इज अ कंपाउंड. ये जब कंपाउंड हम लिखते हैं, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हम कैसे लिखते हैं, तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी, उसकी वैलेंसी उसके ऊपर लिखी जाती है. जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, इस चीज़ को देखिए आप. जैसे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है A, उसकी वैलेंसी है Y, और एक है B जिसकी वैलेंसी है X, A की वैलेंसी है Y. इसका मतलब यदि हम Y को मान ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो A जो है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, Y इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है. और B की वैलेंसी है X, मतलब X क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इट विल शेयर विथ अनदर. दूसरे के कितने देगा इलेक्ट्रॉन या कितना लेगा, है ना. सो ये जो है B जो एलिमेंट है इसकी वैलेंसी X है, मतलब ये X इलेक्ट्रॉन देगा. अब जब हम लिखते हैं, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं उस समय ये जो पर्टिकुलर वैलेंसी होती है उस एलिमेंट के ऊपर लिखी जाती है. तो यदि मैंने ये A एलिमेंट लिखा है तो इसकी वैलेंसी क्या है, Y है, तो मैंने A को लिखा Y के ऊपर. B की वैलेंसी है X, तो मैंने B को लिखा, उसके ऊपर लिखा X. मतलब A की कंबाइनिंग कैपेसिटी है Y, वैलेंसी Y है. B की वैलेंसी X है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी X है. जब ये दोनों आपस में मिलेंगे और कंपाउंड बनता है तो उस समय जब हम वैलेंसी लिखने के बाद में जब हम इकट्ठा करके उसका जब फॉर्मूला लिखते हैं तो ये जो है इट गेट्स क्रॉस, ये जो क्रॉस हो जाता है. मतलब यदि A की वैलेंसी Y है तो इट विल शिफ्टेड टू B, और B की वैलेंसी यदि X है तो इट विल शिफ्टेड टू A. तो जब हम A और B आपस में मिलेंगे तो जो AB बनेगा उसमें आ जाएगा A X B Y, A X B Y. तो A, the electrons of A, valency of A, it will shifted to B and valency of B will shifted to A. तो हो जाएगा A, तो A के साथ में 2 आएगा, इसकी वैलेंसी 2 है, A2 B1. अब यहाँ पर यदि सपोज कोई एलिमेंट है उसके ऊपर उसकी वैलेंसी 4 है और B एलिमेंट है उसकी यदि 2 है, तो यहाँ पर जब हम वैलेंसी लिखते हैं ऊपर तो इसको काट भी सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया A2B1. A2B1 मतलब A के ऊपर यदि 2 वैलेंसी लिखी है तो इट विल कम टू B, B के ऊपर जो लिखी वो इधर आ जाएगी. तो हम इस तरीके से उसको काट कर भी उसके बाद में उसका फाइनल फॉर्मूला जो है कंपाउंड का लिख सकते हैं. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, जिसमें वैलेंसी हम जो है एलिमेंट के ऊपर लिखी जाती है और ये इट गेट्स क्रॉस, ये क्रॉस हो जाती है. तो A वैलेंसी ऑफ द X, वैलेंसी ऑफ B इज X, तो A X, B वैलेंसी ऑफ द A इज Y, सो B Y, A X B Y. तो यदि A की वैलेंसी A है, B की वैलेंसी 2 है, तो हम लिखते समय लिखेंगे A2B1, A2B1. दिस इज अबाउट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जो वैलेंसी लिखते हैं वो उसके ऊपर लिखते हैं, तो ऐसे यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं तो उनकी वैलेंसी उसके ऊपर लिखी हुई है. हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, कार्बन 4. मतलब कार्बन अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4, कैल्शियम 2, ऑक्सीजन 2,
क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो डिफरेंट आइटम्स आपस में मिलेंगे, डिफरेंट आइटम्स ऑफ द एलिमेंट जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, H2O। तो H2, अभी मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी ऊपर लिखी है, ये वैलेंसी जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्रॉस, इट गेट्स क्रॉस, ये क्रॉस हो जाएगी तो H2O1। अब H2O1 नहीं लिखेंगे, यदि यहाँ पर 1 लिखा भी है और नहीं भी लिखा है इसका मतलब ये O1 ही है, ऑक्सीजन के कितने? एक ही है, तो यहाँ पर H2O1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिर्फ H2। वैसे ही NaCl, Na का भी 1 है, Cl का भी 1 है, NaCl। Mg की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, जब ये क्रॉस हो जाएगी तो हो जाएगा MgCl2। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन CaO, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। अब ये फिर यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन CO2, अब आप कहेंगे कि C के ऊपर तो 4 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर तो 2 लिखा हुआ है, तो टीचर इसके हिसाब से तो C2O4 होना चाहिए, है ना? होना चाहिए ना, C2O4 होना चाहिए। जैसे C के ऊपर यदि मैंने 4 लिखा है, O के ऊपर 2 लिखा है, पर अभी मैंने आपको यहीं पर ऊपर बताया है कि इसको हम काट भी सकते हैं, तो इसको जब हम काट लेंगे तो उसके बाद में वो हो जाएगा CO2, तो CO2, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, H2O वाटर। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। Mg प्लस Cl, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, C+O, कार्बन, when they combine with each other, कार्बन डाइऑक्साइड गैस which we exhale during the respiration। हम श्वसन के बाद में जो गैस हमारे नाक में से बाहर निकलती है, that is the carbon dioxide। So carbon plus O, that is carbon dioxide। So this is the valency which is written at the upper side of the element, and these elements combine with each other and they form the कंपाउंड्स। अब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर मैंने 1 लिखा है, इसकी वैलेंसी 1 है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। वेरिएबल होती है मतलब कई बार वो जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में, एटम के साथ मिलेंगे तो अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने का नंबर उनका अलग रहेगा, किसी दूसरे के साथ करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अलग रहेंगे। मतलब यहाँ पर वैलेंसी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसे हैं कि जो अलग अलग केमिकल रिएक्शन में अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं तो उनका नंबर अलग अलग होता है। सो इट इज़ नोन एज वेरिएबल वैलेंसी, मतलब उसकी वैलेंसी बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। वैलेंसी बदलती रहती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलता रहता है। जैसे वेरिएबल वैलेंसी में मैंने लिखा है कॉपर, तो कॉपर किसी केमिकल रिएक्शन में यदि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो किसी केमिकल रिएक्शन में अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये CuCl भी हो सकता है, CuCl2 भी हो सकता है, या Fe दैट इज आयरन। ये आयरन जो है इसकी वैलेंसी 2 भी है और 3 भी है। किसी रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इट हैज 2 वैलेंसीज। देन टीन 2 4, लेड 2 4, मतलब दिस इज द वैलेंसी, वैलेंसी मीन्स दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे शेयर इन डिफरेंट इक्वेशंस। सो दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। फिक्स नहीं है कि कॉपर की 1 ही वैलेंसी, उसकी 2 वैलेंसी भी होती है, कई बार वो 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर करता है। या आयरन जो है कभी 2 करता है, कभी 3 करता है। टीन, लेड कभी 2 करते हैं, कभी 4 करते हैं। वैसे ही नॉन मेटल्स में फॉस्फोरस और सल्फर, फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है, 5 भी होती है, PCl3 भी होता है, PCl5 भी होता है, P2O5 भी होता है, P2O3 भी होता है। यहाँ पर सल्फर भी, सल्फर की तो 3 वैलेंसी, 1 नहीं 2 नहीं 3 वैलेंसी। मतलब ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो कभी 1 इलेक्ट्रॉन, कभी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कभी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कभी 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 2 4 6 ये तीनों सल्फर की वैलेंसी है। सो these elements they have the variable valency। variable valency मतलब उनकी वैलेंसी बदलती रहती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहे हैं वो उनका चेंज होता रहता है। तो सम एलिमेंट्स वी हैव, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। उनकी वैलेंसी कैसी होती है? वेरिएबल वैलेंसी होती है। सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। In that we have studied that the valency is written on the upper side of the element, and when they combine with each other it get cross. A has the valency Y, B has the valency X. So when we write the formula, that time we will write A X B Y, that is A 2 B 1। यदि A की वैलेंसी 1 है, B की वैलेंसी 2 है, जब उसका फॉर्मूला लिखेंगे कंपाउंड का तो हम लिखेंगे A 2 B 1।
तो ये जो है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, वाटर H2O, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जिसको हम बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम वैलेंस इज 2, क्लोरीन 1, कैल्शियम वैलेंस इज 2, ऑक्सीजन CaO, कार्बन वैलेंस इज 4, ऑक्सीजन 2, CO2, and some of the elements we have, they have the variable valency, मतलब उनकी जो combining capacity है वो according to the chemical reaction, the nature of the chemical reaction it changes, तो they may share different number of electrons in different chemical reactions. So copper has 2 valencies, 1 and 2, iron 2 3, tin 2 4, lead 2 4, phosphorus 3 5, sulfur has 3 valencies, 2 4 and 6. So this is about the different elements which share different number of electrons in the chemical reaction. So this is all about the formula of a compound and variable valency. Now you study this and just read it properly, just learn it properly and try to understand it. So students, we have studied about the symbols, we have studied about the formula of compound. Now we will study about the compound radicals and the chemical reaction. अभी मैंने आपको बताया था जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, एटम्स डिफरेंट एटम्स ऑफ द बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो देयर इज ए रिएक्शन बिटवीन देम. ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, नाउ यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन. फिजिकल केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा है. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें नया प्रोडक्ट बनता है और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें नया प्रोडक्ट नहीं बनता है. तो फिजिकल और केमिकल 2 प्रकार की रिएक्शंस होती है. जब ये रिएक्शंस होती है तो उन रिएक्शंस को हम कैसे बताएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, H और O मिलकर वाटर बनता है, सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन और सल्फेट मिलकर H2SO4, उसको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना. सो दैट इज व्हाई वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मूला. अब जब रिएक्शन होती है तो उसको भी डिनोट करने के लिए, उसको भी बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, जो सिम्बॉल्स, फॉर्मूला और सब कुछ हम यूज़ करते थे, जैसे केमिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, उसको हम सिम्बॉल्स के द्वारा, रेडिकल्स के द्वारा हम बताते हैं. तो कंपाउंड रेडिकल्स मतलब, यहाँ पर कंपाउंड रेडिकल्स मतलब कि जो एक ही प्रकार की या डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, डिफरेंट एटम्स एलिमेंट्स से मिलकर जो बना हुआ है. अब यदि हम यहाँ देखें तो कंपाउंड रेडिकल्स में जैसे है सोडियम और हाइड्रोक्साइड OH. सोडियम अलग है, हाइड्रोक्साइड अलग है. ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ कंपाउंड रेडिकल. अब यहाँ पर यदि हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम देखेंगे तो वो सोडियम के जो है गुण वो अलग नहीं रहेंगे, हाइड्रोक्साइड के गुण अलग नहीं रहेंगे. जब वो दोनों आपस में मिल गए हैं तो दे हैव देयर ओन कैरेक्टर्स, उनके अपने खुद के कैरेक्टर्स रहेंगे. दे विल बिहेव लाइक ए सिंगल. ऐसा नहीं कि सोडियम अपने कैरेक्टर अलग बताएगा, हाइड्रोक्साइड अलग बताएगा, नहीं. सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि कंपाउंड रेडिकल बनाया है, दे विल बिहेव लाइक ए सिंगल एटम. सोडियम अलग नहीं जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद में इट विल बिहेव लाइक ए सिंगल एटम, दैट इज द कंपाउंड रेडिकल. तो ये दोनों अपने बिहेवियर अलग अलग नहीं बताएंगे जब इसका NaOH बन जाएगा. इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है, मैंने इनकी वैलेंसीज लिखी हुई है. अभी हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा है, लेक्चर में पढ़ा है कि वैलेंसी हम उसके ऊपर लिखते हैं और जब लिखा जाता है फॉर्मूला तो इट गेट्स क्रॉस, वो क्रॉस हो जाती है. तो यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड 1, NaOH, कंपाउंड रेडिकल इज फॉर्म. पोटेशियम 1, हाइड्रोक्साइड 1, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पर NH4, अमोनिया, NH4 वैलेंसी 1, SO4 सल्फेट ग्रुप, दैट इज 2. तो जब हम इसको लिखेंगे तो NH4 ट्वाइस, क्योंकि ये वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी क्रॉस हो जाएगी. NH4 ट्वाइस SO4 जिसको हम बोलते हैं अमोनियम सल्फेट. Sodium again carbonate, CO3 carbonate. When they get combined, sodium valence will be here again cross, Na2CO3, sodium carbonate. Hydrogen or sulfate, when they get react with each other, they will form a compound radical, that is H2SO4. H2SO4 1 है, 1 लिखेंगे नहीं, H2SO4. So compound radicals में they will behave like a single atom. अलग अलग
बिहेव नहीं करेंगे, दे विल बिहेव लाइक ए सिंगल एटम, और दे मे बी इंटैक्ट इन डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस, अलग अलग केमिकल रिएक्शन में इंटैक्ट हो सकते हैं, पर दे विल बिहेव लाइक ए सिंगल एटम. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, NH4 और SO4 अमोनियम सल्फेट, सोडियम प्लस कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट. अब अभी मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन, फिजिकल और केमिकल दो प्रकार के रिएक्शंस होती है. इसमें केमिकल रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें कि जब दो एलिमेंट्स ऑफ द सेम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट या डिफरेंट आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म द प्रोडक्ट, कुछ एक नई चीज़ बनती है. केमिकल रिएक्शन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, द न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, न्यू थिंग इज फॉर्म विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट. तो यदि कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों यदि आपस में मिले हैं, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बनाया है, तो हाइड्रोजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और ऑक्सीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब पानी बन जाएगा तो ये इससे एकदम अलग रहेगी. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, पर ये दोनों मिलकर जब पानी बनाते हैं तो वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स इससे अलग रहेगी. तो व्हेन दिस टू रिएक्ट विथ ईच अदर दे आर डिनोटेड बाय केमिकल रिएक्शन. उसको जो केमिकल रिएक्शन से हम बताते हैं. तो इस केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं. वन पार्ट इज द रिएक्टेंट साइड. रिएक्टेंट साइड मतलब यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दैट इज द रिएक्टेंट साइड. वो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, और इन दोनों के रिएक्शन के बाद में जो नया प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द प्रोडक्ट साइड. तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनेगा, या कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो है, ये जितना भी इनका कॉम्बिनेशन होगा, जिस रेशियो में ये एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, तो रिएक्शन के दौरान इनका जो नंबर रहेगा वो प्रोडक्ट बनने के बाद भी सेम ही रहेगा. रिएक्शन में हो सकता है कि आइदर द हीट में इवॉल्व, हीट में एब्जॉर्ब, हीट निकल भी सकती है या हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, लाइट इवॉल्व भी हो सकता है या एब्जॉर्ब भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन में. तो ये जो भी कुछ होगा, बट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन व्हेन द प्रोडक्ट इज फॉर्म, देन द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. और यही होना भी चाहिए. देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. रिएक्शन के दौरान यदि दो सोडियम के एटम ने पार्टिसिपेट किया है, तो जब उसका प्रोडक्ट बनेगा, या हाइड्रोजन के दो मिले हैं, तो प्रोडक्ट जब बनेगा उसमें भी उसके दो ही एटम होना चाहिए, कम नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा. जब H2O बनता है तो ये हाइड्रोजन के दो एटम्स है और ऑक्सीजन का एक है, तो जब पानी बनेगा तो उसमें भी बराबर ही रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि यदि रिएक्शन हो गई है तो रिएक्टेंट साइड में 4 एटम ने पार्टिसिपेट किया है और जब प्रोडक्ट बना उसमें 2 ही रह गए, 2 कहाँ गायब हो गए, ऐसा नहीं होता है. तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, एंड दैट इज रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. और हमेशा केमिकल रिएक्शन बैलेंस ही होती है. केमिकल रिएक्शन मतलब जो भी हमारा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हम जिस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, एंड इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. जैसे यहाँ पर C+O2, ये जो C+O2 है, इसमें दोनों ने मिलकर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन के 2 एटम दिख रहे हैं, यहाँ पर बराबर इधर भी 2 एटम है. ट्वाइस C+O2, यहाँ पर भी ट्वाइस CO. देख लो, कार्बन के यहाँ पर 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 है. जब कार्बन मोनोऑक्साइड बना है तो उसमें भी कार्बन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है. रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, बट नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम. H2Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन ट्वाइस HCl. मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के 2 है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है. जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना 2MgO. तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स जो है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ 2, तो इट इज सेम एज लाइक हियर दिस साइड. सो whenever the chemical reaction takes place,
the number of atoms, number of electrons, number of atoms participating on reactant side is always equal to the atoms formed after the product. प्रोडक्ट जो बन गया है उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम जो है सेम ही रहेगा, वो अलग नहीं रहेगा. सो दैट इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और ये होना ही चाहिए. देन ओनली इट विल फुलफिल द कैरेक्टर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर ही है कि वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, मतलब reactant side should be equal to the product side, number of atom on reactant side we should be equal to the number of atoms on the product side. So children, this is about the compound radicals. कंपाउंड रेडिकल्स मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर या डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बने हैं, बट दे बिहेव लाइक ए सिंगल, दे बिहेव लाइक ए सिंगल एटम. भले ही अलग अलग है, सोडियम अलग है, हाइड्रोक्साइड अलग है, पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इट विल कंप्लीटली will be a one, that is a compound radical. So sodium plus hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, so ammonium sulfate, sodium carbonate, hydrogen sulfate. And then about the chemical reaction, balanced chemical reaction. In balanced chemical reaction, the number of atoms on the reactant side is always equal to the number of atoms on the product side. So this is all about this chapter. Now you all study this chapter carefully, try to read it again and again so that you can understand some difficult terms, you can understand it very easily. So you can note it down and you can study it properly.